Okay, so we are live. Hello, everyone. Welcome to our seventh episode of NGO Talks with the Agents of Change. I am your host, Nitin Shah, CEO and Director of ICHA Support Foundation. And today we are in conversation with Mr. Dilip Gaunkar from Parivartan, which is a mental health and de-addiction center. Before I talk about Dilip sir and the Parivartan, uh, let me quickly introduce ICHA Support Foundation for all of you. ICHA Support Foundation is a non-profit organization focusing on promoting the mental health case that is bringing about change through awareness, support, and education. Our work is based on the belief that raising public awareness, educating communities, and equipping every person with the right tool can help us foster optimal mental health. While we work with clients and patients who may be having issues related to mental health or are looking at improving their mental health, a major line of our work revolves around facilitating the facilitators, which means we focus on helping practicing psychologists, other mental health professionals in being able to create an emotionally and financially fulfilling career. And we also focus on helping other NGOs which are working in the area of mental health to help them spread word about the kind of activities they are doing. And that's exactly what is the objective of our NGO talks. Recently, on in terms of spreading awareness of mental health, we initiated a challenge called the Mental Health Practitioner Challenge. It is a challenge where mental health practitioners are requesting people to seek help before it's too late. I would like to request all of you who are watching this video to also check out the visitemhp.com website and to actually join us in this mission, in this initiative to help us spread the word about the need for visiting a mental health practitioner. And as always, I would like to begin this episode with an announcement saying that if ever I was in a situation where I felt overwhelmed, uncomfortable for more than 2 days, I would surely at least consult my mental health practitioner and seek support and ask him to guide me in terms of how I can manage what I'm experiencing. I hope you would do the same too and you would not wait for it to get too late. Let me now introduce Parivartan. But before that, welcome, Mr. Dilip. How are you? Yeah, I'm good, sir. Thank you. Thank you for the Thank, opportunity. thank you. Thank you for joining us for the NGO talks and for helping us understand what Parivartan does. Uh, Yes, about sir. Parivartan. So I'm just going to introduce Parivartan from my side right now, and then I would like you to give a more detailed introduction about Parivartan, the activity Parivartan does, and also a couple of things that you would like to tell us about yourself. Yes. So, Parivartan is a mental health and de-addiction trust. It was established by Dr. Narendra Dabholkar and Dr. Shaila Dabholkar in 1991. The journey began with a small counseling center for people having addiction problems at Satara district, Maharashtra. In 3 decades, Parivartan evolved into a pioneering organization in development and scientific testing of various models of care for people with mental health and addiction problems. They aim to provide high quality comprehensive mental health services at low cost to marginalized communities. Their ongoing initiatives are de-addiction and rehabilitation center, community-based mental health care services, Mind Cafe, and suicide prevention helpline. Our speaker today, Dilip Gaunkar sir, has completed his master's in social work in mental health from TIS, Mumbai. He joined Parivartan Trust in the year 2014 as an intervention coordinator and is currently leading a team of Parivartan Trust in Assam. He started his work in the field of mental health at the age of 21 as a community health worker, uh, which raised his interest in the mental health care field. His area of interest is youth mental health, where he works in prevention and reducing the harm of substance use and other addiction, and community-based rehabilitation. So once again, welcome Dilip sir, and I would really like you to give us a bit more introduction, a bit more understanding about what Parivartan does, and uske pehle, a few words about yourself, so that we can get to know you and everyone who's watching the video can know uh, where do you come from. Okay. Thank you, sir. Thank you for giving this opportunity, and also to the organization for sending me for this on your big platform.
So I'll be talking basically like Hindi also, like I'll be fluent more in Hindi than that of English. So बिल्कुल सर बिल्कुल। तो मेरा नाम, जैसे आपने इंट्रोडक्शन किया है, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया है आपने, और बहुत जानकारी आपने मेरे ऑलरेडी दे दिए हैं हमारे सभी व्यूवर्स को। तो मैं व्यूवर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, आपको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो आज मैं यहाँ पे आपके सामने परिवर्तन का क्या वर्क है, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम परिवर्तन को आगे में क्या देखना चाहेंगे, ये आपके बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं सबके साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो जैसे आपने बोला, यानी कि मैं मेरा बारे में थोड़ा बोल देता हूँ। जैसे कि मैं दिलीप, मैं एक्चुअली गोवा से हूँ, और मेरे जो पढ़ाई है सब मैंने गोवा से ही की है। आई एम एक्चुअली फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, जहाँ पे आज आज तक जो हमारे गांव में नेटवर्क नहीं है। जब भी हमें नेटवर्क, अगर किसी को फोन तक करना है, तो हमें 8 से 9 किलोमीटर जाना पड़ता है, तभी हमें नेटवर्क आता है। तो एक ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ मैं। तो मेरी पढ़ाई जैसे 12th तक मैंने गोवा में किया है। तो उसके बाद में मुझे मेरे भाई ने सोशल वर्क पढ़ने के लिए मुझे सातारा में भेजा, महाराष्ट्र, जहाँ पे सोशल वर्क मैंने, बैचलर इन सोशल वर्क मैंने डिग्री कोर्स कंप्लीट किया है। पर जब टिल 12th तक मुझे, जब मेरा रिजल्ट जब तक आया, तब तक मुझे भी कुछ पता नहीं था कि मैं आगे जाकर क्या पढ़ने वाला हूँ। तो ये एक मैं एक्सीडेंटल सोशल वर्कर भी बोल सकता हूँ, जहाँ पे गोवा में पहले सोशल वर्क का ना कॉलेज था, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं थी कि सोशल वर्क भी एक फील्ड है करके। तो मेरे भाई को भी कुछ भी पता नहीं था, उसने मुझे सिर्फ लाकर ड्रॉप किया कॉलेज में। वहां से मेरी सोशल वर्क की जर्नी शुरू हो गई। जो आज मैं अगर वो दिन अगर देखता हूँ और आज का दिन अगर देखता हूँ, शायद एक्सीडेंटल, यानी कि मेरे भाई ने शायद मेरे अंदर के जो सोशल वर्क की जो एक स्किल्स होनी चाहिए, वो शायद उसने देखी थी, उनको लगा कि ये कुछ सोशल वर्क में कर सकता है। और उन्होंने मुझे जो एक कॉलेज में एडमिशन दिया, बहुत ही अच्छा उसने किया। आज मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, मेरे भाई को। और वहां से मेरी सोशल वर्क की जर्नी जो शुरू हो गई, मैंने ड्यू टू सम सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जैसे मेरा डिग्री खत्म होता है, मैं इमीडिएट पढ़ाई करने के लिए, मास्टर्स करने के लिए नहीं जा पाया। तो मैंने थोड़ा काम किया, एक काम करने के लिए भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। सांगा एक गोवा बेस्ड मेंटल हेल्थ एनजीओ है, जहाँ पे मैंने मेरा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एज एन काम मैंने शुरू किया वहाँ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। जो मैंने एज एन, यानी कि ग्रास रूट लेवल काम मैंने मेरे आफ्टर BSW कंप्लीट काम किया। तो 3 साल मैंने प्रोजेक्ट में काम किया, तब मेरा मेंटल हेल्थ में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। वो प्रोजेक्ट भी मेंटल हेल्थ फील्ड में ही था, जो कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, जो हम होम बेस्ड इंटरवेंशन उनको डिलीवर कर रहे थे, जहाँ पे वो कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स में थे। जब मैं बाकी का काम के बारे में जब बोलने जाऊंगा, वो डिटेल में बोल दूंगा। जो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, और ताकि बाद में मुझे भी लगा चलो अभी मेरा ये इंटरेस्ट जो डेवलप हो गया, मुझे आगे अगर कुछ काम में मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे फर्दर स्टडीज की जरूरत होगी। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो टिस में कर लेते हैं। तो टिस में मैंने अप्लाई किया, तो टिस में मुझे मास्टर्स करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो 2012 2014 मैंने टिस में मेरे मास्टर्स कंप्लीट किया। मास्टर्स के बाद मुझे एक फिर से अपॉर्चुनिटी मिल गई कि नॉर्थ ईस्ट में जाकर काम करने के लिए, जो अपॉर्चुनिटी मुझे परिवर्तन ने 2014 में दी थी। तो अभी 2014 से लेकर अभी 2020 तक अभी मैं आसाम और अरुणाचल का जो परिवर्तन का काम है, वो काम अभी मैं देख रहा हूँ। तो ये मेरा, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर से अभी मैं यहाँ का टीम लीड कर रहा हूँ, परिवर्तन का टीम लीड कर रहा हूँ। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रहा, बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। ये रहा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो अभी मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बोलूंगा। जैसे कि परिवर्तन जो एक कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर और डॉक्टर शैला दाभोलकर, जो एक डॉक्टर कपल है, वो लोगों ने शुरू की थी इन 1991। बहुत लोग डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को भी अच्छी तरह से जानते हैं ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि उनका जो काम है एंटी सुपरस्टिशन एक्टिविटीज के लिए, एंटी सुपरस्टिशन बिल लाने के लिए उसने जो बहुत ज्यादा काम किया था। तो उनके लिए आज तक, यानी कि सब जगह पर उनका नाम लिया जाता है, उनके काम की सराहना की जाती है। और उन्होंने जब ये काम शुरू किया था, जैसे कि 1991 में, तो ये बेसिकली एक्चुअली डी एडिक्शन सेंटर अवेयरनेस के काम उसने शुरू किए थे, एडिक्शन रिलेटेड अवेयरनेस
और उनके लिए सिर्फ काउंसलिंग। स्टार्टिंग क्या था, देन डायरेक्ट डी एडिक्शन सेंटर नहीं था, बट धीरे धीरे उनको भी लगा कि जो ज्यादा जरूरत है, जिनको ऐसे एडमिशन की जरूरत है, उनके लिए भी फैसिलिटी बहुत ही कम थी। तो डी एडिक्शन सर्विस सेंटर सर्विस शुरू किया है। अभी 25 साल डी एडिक्शन सेंटर में हो गए हैं, और धीरे धीरे जैसे एडिक्शन के साथ काम करते करते ऐसा भी पता चला है कि ये कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, यानी कि मेंटल हेल्थ एज एन एस्पेक्ट जब देखते हैं, इट्स नॉट ओनली एडिक्शन, इसमें बहुत सारे बाकी भी कंपोनेंट्स हैं। मन का बीमारी बाकी भी है, या कॉमन मेंटल डिसऑर्डर हो या सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, तो उसमें भी धीरे धीरे काम शुरू हो गया है। अभी ऑलमोस्ट अराउंड 10-15 साल हो गए, सिंस 2008-9 कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ एक्टिवली प्रोग्राम में इन्वॉल्व है परिवर्तन ट्रस्ट, जो सातारा में है, पुणे में है, और आसाम में अभी काम कर रहे हैं। तो आसाम में जो काम शुरू हो गया 2011 से, उसके पहले जो काम जो भी था ये महाराष्ट्र बेस्ड में काम चल रहा था। जो काम हमें कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ काम भी हमें आरंभ करने के लिए, शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से भी मिला है, हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए। फंडेड प्रोजेक्ट्स भी मिले थे हमें, जो जिसकी वजह से हम यानी कि हमारा काम आगे बढ़ा सके। बहुत सारे स्टेट्स में भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो डिटेल्स में बाद में मैं बोल दूंगा आप सभी को। तो ये रहा यानी कि परिवर्तन की जर्नी। परिवर्तन का अभी जो काम है, अभी जो देख रहे हैं परिवर्तन का काम, डी एडिक्शन में काम चल रहा है, और दूसरा काम जो है कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ में काम चल रहा है। तो ये 3 स्टेट में अभी काम चल रहा है, महाराष्ट्र है, आसाम है और अरुणाचल प्रदेश। ओके, परफेक्ट। एंड दिलीप, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। परफेक्ट। तो आपने आपके बारे में, परिवर्तन के बारे में मुझे एक इंट्रोडक्शन दे दिया है, सब व्यूअर्स को भी इंट्रोडक्शन दे दिया है। परिवर्तन की मेजर जो एक्टिविटीज हैं आपके हिसाब से, जो स्पेशली इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज मेंटल हेल्थ के सेक्टर में हैं, उन एक्टिविटीज के बारे में आप थोड़ी और डिटेल्स दे पाएंगे? श्योर सर। अभी जैसे कि परिवर्तन के अभी मेजर जो हमारे एक्टिविटीज हैं, तो उसमें अभी हम कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज, जो मैंने पहले ही बोला था। एक्चुअली जब मेंटल हेल्थ यानी कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है हमारे इंडियन सेटअप में जब देखते हैं, और उसके लिए यानी कि कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस भी हैं, इजी सॉल्यूशंस नहीं है। तो हमारा मेन एम ऐसा रहा था कि यानी कि अभी जो ज्यादातर सर्विसेज अवेलेबल रहते हैं वो अर्बन एरियाज में है, बहुत ही कम सर्विसेज रूरल एरियाज में है, या जोग्राफिकली आइसोलेटेड प्लेसेस में बहुत ही कम है। जैसे आसाम पकड़ लीजिए, नहीं तो फिर अरुणाचल में पकड़ लीजिए। इवन इन मेनलैंड इंडिया बाकी जगह पर भी जाएंगे, गांव में मेंटल हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज बहुत ही कम है। तो हमारा मेन काम रहा है कि जितना हो सके ये हमारा टास्क शिफ्टिंग, यानी कि काम हम जितना हो सके वो रूरल एरियाज में लेकर जाए, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन डेमोग्राफी जो ज्यादा से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, शहर में कम ही है। तो ज्यादा जो सर्विसेज होनी चाहिए वो गांव में होनी चाहिए। तो हमारा जैसे कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम करके एक स्पेशल एक प्रोग्राम हम चला रहे हैं, जहाँ पे अवेयरनेस को लेकर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो केसेस हैं वो आइडेंटिफाई करना, चाहिए तो रेफर करना, नहीं तो फिर हमारे इवन टीम है जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं, तो वो लोग हम उनमें ट्रीटमेंट भी करते हैं। और हमारा एक रिहेबिलिटेशन करने के लिए भी हमारे यानी कि एक पूरी टीम है जो कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन पार्ट देखते हैं। तो एक रहा यानी कि हमारे कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज, जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है हमारा, जहाँ पे हम उनको जितना हो सके वो जाकर उनको सर्विस प्रोवाइड करें, गांव में जाकर सर्विस प्रोवाइड करें। दूसरा हमारा प्रोग्राम है और जैसे कि एक नया वेरी इनोवेटिव प्रोग्राम हमने शुरू किया है, मानस रंग करके, यानी कि हम बोल सकते हैं कलर्स ऑफ माइंड। ये एक आर्ट बेस्ड थेरापी है जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो दिलीप सर, आप मानस रंग के बारे में बोले, उसके पहले क्योंकि हम कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज की बात कर रहे थे, अगर आप थोड़ा और डिटेल्स दे पाएंगे कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज का मीनिंग क्या होता है, ताकि कुछ व्यूअर्स जिनको प्रोबेबली उस टर्म का मीनिंग नहीं पता है, दे कैन अंडरस्टैंड। तो अगर आप कुछ थोड़ा सा और मुझे बता पाएंगे कि कम्युनिटी बेस्ड का क्या मीनिंग होगा? अच्छा, तो ये यानी कि सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बोल दूंगा, एक तो हमारा क्लिनिकल बेस्ड मॉडल है मेंटल हेल्थ सर्विसेज के लिए, और दूसरा है जो हमारा कम्युनिटी बेस्ड मॉडल।
जो क्लिनिकल बेस्ड मॉडल्स में हमारे क्या हो जाता है, जैसे कि लोग कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाते हैं हॉस्पिटल में आ जाते हैं या क्लिनिक में आ जाते हैं या डॉक्टर को दिखाते हैं, पर हमारा जो एक सोशल फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जो लोग हर कोई यहाँ तक नहीं आ पाते हैं और बहुत ही कम जानकारी लोगों को है, मन की बीमारी की जानकारी बहुत ही कम है, मन की बीमारी भी क्या होती है लोगों को पता नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि लोग, बहुत ज्यादा लोग यहाँ तक आ नहीं पाते हैं, सर्विसेज अवेलेबल होने के बावजूद भी लोग आ नहीं सकते हैं। उसमें बाकी भी डिफिकल्टीज हैं, जैसे कि स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन भी है, जो यहाँ तक आने के लिए रोकते हैं। तो ये क्लिनिकल बेस्ड में आने के लिए प्रॉब्लम है। क्लिनिकल बेस्ड सेटअप तो यानी कि हर जगह पर ज्यादातर अवेलेबल हो ही है, पर जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, यानी कि ये कम्युनिटी पकड़ लीजिए, तो वहां पे हमारे मेंटल हेल्थ सर्विसेज कितना अवेलेबल है, तो वहां पे ऑलमोस्ट यानी कि ना के बराबर हम बोल सकते हैं। आप जहाँ पे भी जाओ, हम जब पूरे इंडिया में अगर घूम लेंगे, अगर हम जो भी होर्डिंग्स देखते हैं, अवेयरनेस देखते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ भी नहीं है। तो जो हमारा मेन एम रहा है कि यानी कि कम्युनिटी में जाकर लोगों को जानकारी दे दो, अवेयरनेस करो। जब लोगों को जानकारी रहेगा, अवेयरनेस रहेगा कि मन की बीमारी क्या होती है, कौन से साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, मल्टीपल नेटवर्किंग पार्टनर्स हमारे रहते हैं, की स्टेक होल्डर्स रहते हैं, जो कम्युनिटी के की स्टेक होल्डर्स रहते हैं। ऐसा नहीं यानी कि अगर हम एक जगह पर बैठे हुए हैं तो वहां के ही स्टेक होल्डर्स हमारे कम्युनिटी में काम कर रहे हैं। हमारे कम्युनिटी के की स्टेक होल्डर्स हैं जो हमें कम्युनिटी से हेल्प करते हैं, तो उनको हम पहले अवेयर करते हैं, उनको हम पहले जानकारी देते हैं कि क्या है क्या नहीं है, मन की बीमारी के लक्षण क्या है, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस पीपल। स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन भी एक बहुत ही बड़ा इश्यू जो है, वो जो जानकारी हम सही तरफ से देने के ये भी मदद सॉल्व करने के लिए हमें एक हेल्प होता है। तो जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो हम जब बात तक नहीं करते हैं, वो एक हमें कम्युनिटी में लेकर जब जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, जी हाँ, बोलिए। तो हमें एक, यस, तो हमें एक मदद हो जाती है, यानी कि एक जो एक ब्रिज है, गैप है, जो हम गैप देखते हैं वो फिलअप करने के लिए, तो वो हमें कम्युनिटी में लेकर जाना एक बहुत ही जरूरी है। और एक मॉडल हम बोल सकते हैं इसको, जो नीड एंड सप्लाई अगर हम देखते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, ऐसे बीमारी तो बहुत ही ज्यादा है पर सर्विसेज बहुत ही कम है। तो बेस्ट ऑप्शन यानी कि मैं अभी बोल सकूंगा कि जहां तक मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, कि हमें ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी बेस्ड मॉडल्स होने चाहिए, जो सर्विसेज हम हर जगह पर, यानी कि सब सेंटर लेवल हो या पीएचसी लेवल पे हो, वहां पे सर्विसेज हो, और गांव से लोग या कम्युनिटी से लोग ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होने चाहिए। जितना पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तब भी हम ये मूवमेंट जो है, एक मॉडल डेवलपमेंट का मॉडल मूवमेंट है, वो हम आगे लेकर जा पाएंगे। और इसमें हर लोगों का यानी कि इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल परफेक्ट। और आप फिर और सर, हाँ प्लीज सर बोलिए। इसके रिलेटेड यानी कि जो अभी का ये प्रोग्राम है, जैसे फिर से थोड़ा ब्रीफ यानी कि, और मैं ज्यादा बोलना चाहूंगा बिल्कुल कि बिल्कुल किस तरफ से हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल जो है वो करना चाहूंगा, अभी मैं बोलना चाहूंगा। जैसे कि अभी हमारा पुणे, सातारा और आसाम से हम तेजपुर या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स और अरुणाचल में काम कर रहे हैं। तो बहुत बार क्या होती है, फंडिंग का इश्यू रहते हैं या बाकी प्रॉब्लम्स, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहते हैं, फंडिंग नहीं होती है तो बंद हो जाते हैं, बहुत सारे डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स रहते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ मॉडल हम डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि कॉस्ट इफेक्टिव क्वालिटी बेस्ड सर्विसेज, यानी कि इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास सब रिसोर्सेज तो हैं, साइकियाट्रिस्ट से लेकर इवन बाकी जो सोशल वर्कर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो हम लोगों यानी कि कॉस्ट इफेक्ट जो, जैसे कि अभी हम आसाम से फॉर एग्जांपल मैं बोलना चाहूंगा, आसाम से अगर हम अरुणाचल में सर्विस अगर डिलीवर करते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, लोगों को अगर अरुणाचल से तेजपुर आना पड़ता है, इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एलजीबीआरआई में जो है, एक ही ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज मिलती हैं और सर्विसेज अवेलेबल हैं, बहुत ही बड़ा सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। पर जैसे कि ये सर्विसेज एक्सेस करने के लिए लोगों को बहुत दूर दूर से आना पड़ता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उनको बहुत दूर से यहाँ पे आओ, सर्विस का फायदा उठाओ, वापस चले जाओ। तो यानी कि अगर 10 लोगों को सर्विस का फायदा उठाना है तो 10 लोगों को यहाँ पे आना है।
तो हमने क्या डिसाइड किया है कि अगर वो 10 लोग यहाँ पे आते हैं तो उससे बेहतर रहेगा अगर हम 2 लोग अगर हम वहां पे जाते हैं तो 10 लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो इस तरफ से हम एक मॉडल डेवलपमेंट की कोशिश करते हैं और इसमें बहुत ही कम पैसे में उनको पूरा ट्रीट देते हैं, जैसे कि साइकेट्रिस्ट का पूरा ट्रीटमेंट रहता है, मेडिसिन देते हैं उनको, काउंसलिंग देते हैं, काउंसलिंग ओवर फोन, और अगर कुछ इमरजेंसी कुछ सर ये चाहिए उनको कुछ सलाह चाहिए, एडवाइस चाहिए तो डेफिनेटली हमारे साइकेट्रिस्ट अवेलेबल रहते हैं, तो उनसे हम उनको बात करवा देते हैं। तो इस तरह से हम ये सर्विस कम्युनिटी में पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे यानी कि सातारा में भी हैं। और एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जो हमने पहले एक प्रोग्राम किया था जन मन स्वास्थ्य प्रोग्राम करके, उसमें भी हमारा ये सेम काम रहा था। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, जैसे कि हमारे पास जो सब सर्विसेज थे यानी कि स्पेशलिस्ट थे, तो हमने गांव के आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, गांव के पंचायत मेंबर, टीचर, ये इन सब लोगों को हमने ट्रेन किया था ये प्रोग्राम के थ्रू। तो उससे हमें हेल्प हुआ कि जैसे कि कुछ ऐसे बीमारी है तो वो आइडेंटिफाई करना, किसी के ऊपर अगर किसी को अगर मन का बीमारी, जब हम बोलते हैं लोग पागल बोलना कभी छोड़ते नहीं है, मौका मिलते ही पागल बोलते हैं। तो ये सब स्टिग्मा, ये सब प्रॉब्लम्स जो है लोगों जो फेस कर रहे हैं, जो भी कोई बीमारी हो जाते हैं, तो उनसे थोड़ा उनको सपोर्ट पाने के लिए हमने जो एक की स्टेक होल्डर्स हैं गांव के, तो उनको हमने ट्रेन किया था, ताकि वो कम्युनिटी लेवल पे ये फ्रंट वर्कर्स, हमारे और फ्रंट वर्कर्स बन जाएंगे, जो कुछ भी अगर असुविधा हो जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स ऐसे हो जाते हैं, तो वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे, कुछ टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो हमसे वो ले लेंगे। और गांव के लेवल पे वो लोगों ने जैसे कि अवेयरनेस के लिए हमें मदद किया है, बाकी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें हेल्प किया है, हेल्थ कैंप, मेंटल हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करने के लिए मदद किया है। तो इसके थ्रू यानी कि ये एक हमारा मेन मोटिव था कि जो अर्बन सेटअप में है, क्लिनिकल सेटअप है, वो हम कम्युनिटी सेटअप में लेकर जाएंगे। वहां पे देखेंगे कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे मेंटल हेल्थ सर्विसेज वहां पे दे पाए। So this is actually a very good model, क्योंकि अगर हमें इंडिया में इन सब चीजों को ग्रास रूट लेवल तक लेके जाना है, तो हमारे लिए बहुत सर जरूरी है कि हम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। am I audible now? नो सर, नॉट येट। Am I audible now? सर कैन यू हियर मी? I can hear you. Can you hear me? Just a second. Just give me a moment. Okay. अभी आपको आवाज आ रही है? दिलीप जी, अभी आपको आवाज आ रही है? आवाज कम आ रही है थोड़ी अभी, पर फिर भी ठीक है। या यू कैन गो अहेड सर। बिल्कुल। So I was saying कि in a country like India, जहाँ पे हमें ग्रास रूट लेवल्स तक अगर पहुंचना है, तो कम्युनिटी लीडर्स के सपोर्ट और कम्युनिटी लीडर्स का अवेयरनेस बहुत जरूरी है। So I think this is a very very good initiative. यस सर। आप अपने जस्ट सेकंड सर। बिल्कुल सॉरी सर, व्हाट हैपेंड आई डोंट नो, सडनली दिस हैज हैपेंड। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स ओके। अभी आपको आवाज आ रही है? सर यस, कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू। No, I have got some serious problem.
ओके, आप मुझे मनस्रंग के बारे में बता रहे थे, राइट? ओहो, अच्छा सर, या अभी आपको आवाज आ रही है? हाँ, बहुत ही कम आ रहे हैं। आप ठीक एक है, बार आई मैनेज सर, या और श्योर। सो आप मुझे कम्युनिटी बेस्ड सर्विस के बाद अपने अगले प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे, yes sir, मनस्रंग के बाद। that is regarding, yeah, that is regarding मानस रंग what I was talking about। हम्म। एक मानस रंग जो हमारा प्रोग्राम है, वो बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है एक्चुअली। एक आर्ट बेस्ड थेरापी यानी कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में से हमने इसमें डेवलप किया हुआ है। जो हमारा सातारा और पुणे में एवरी वीक में ये चल रहा है, जहाँ पे पीयर्स एंड केयरगिवर्स यानी कि जो भी मन के बीमारी के जो रोगी हैं, जिनको रोग हैं, और उनके घर वाले या उनके जो देखभाल करते हैं, वो ये ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। हम जब भी बोलते हैं कोई भी मन की बीमारी जब हो जाती है, तो उनको एक एंगेजमेंट होना, लोगों से मिलवाना, एक सपोर्ट ग्रुप की जरूरत होती है। तो ये जो एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस ऑफ रिकवरी जो है, इट्स नॉट ओनली मेडिसिन, देयर आर लॉट ऑफ अदर कंपोनेंट्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ रिकवरी। तो इसमें हमने ये अभी जो नया एक ये शुरू किया है मानस रंग का प्रोग्राम जैसे, जहाँ पे जो भी मन के बीमारी रोगी हैं, घर वाले हैं, वो एवरी वीक एक जगह पर आते हैं, यानी कि हमारे रेस्पेक्टिव जो ऑफिस हैं वहाँ पे आते हैं ये। तो वहाँ पे आकर वो अपने स्किल्स, like they share like what they have, they share like their hurdles, like how they overcome from these difficulties, स्पेशली जब ये मन सीवियर मेंटल इलनेस, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी हो जाती है ना, तो इसमें एक सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और उनको सपोर्ट देने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। तो उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे स्पेशलिस्ट उनको हेल्प करते हैं, और उनके अंदर में भी कुछ टैलेंट है, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ आता नहीं है। बहुत बार हमें लगता है ये तो लोग बोलते हैं, बोलना बहुत गलत है, इनके पागल है, कुछ काम का नहीं है। पर ये एक गलत धारणा जो है, जो हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट है। पर अगर जो हमारा ये मानस रंग का ग्रुप है, वहां पे हमने देखा है, जो महाराष्ट्र इज एक्चुअली कल्चरली रिच स्टेट, जहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरह के यानी कि कल्चर्स, फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। बहुत ही ज्यादा लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी हैं, उनकी स्किल्स हैं जो उनको कभी भी एक्सप्रेस करने के लिए मौका नहीं मिला। तो मानस रंग ग्रुप जहाँ पे उनको कभी कोई कुछ बोलते नहीं है, इनके बहुत ही अच्छा बोलते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी जो स्किल्स हैं उनको वो एनहांस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम उनको हेल्प करते हैं। बहुत बार यानी कि बहुत सारा हमारा ऐसा भी इनिशिएटिव्स रहा है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे वो लोगों ने परफॉर्म किया है। जो भी हमारे आजकल प्रोग्राम्स जो होते हैं, जो हमारे फेसबुक पेज है, परिवर्तन के फेसबुक पेज है, वहां पे भी अगर जाकर देखेंगे, तो हमारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आधा सा ज्यादा रोल जो रहते हैं हमारे जो पीएस एंड केयर गिवर्स निभा रहे हैं वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि उनका स्किल्स कम हो गए हैं या उनको कुछ आएगा नहीं, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे वो आकर शेयर करते हैं, अपने दुख दर्द शेयर करते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। और हम एक मीडियम है जो उनको एक जगह पर लाकर उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और उनके बीमार को खुद को हेल्प करने के लिए, खुद के फैमिली को हेल्प करने के लिए हम उनको ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। जो हमारा ये काम देख के अभी फ्यू मंथ्स बैक एक्चुअली इवन हमारे ये प्रोग्राम के लिए हमें बजाज की तरफ से फंडिंग भी मिली है, जो अभी पुणे एंड सातारा में ये प्रोग्राम के बारे में काम चल रहा है। बहुत ही अच्छी तरफ से ये काम हमारा अभी वहाँ पे चल रहे हैं, ये दो जगह पर। और जब भी मौका, यानी कि मैं बोलूंगा कि मौका मिलेगा, तो एक बार अगर कम्युनिटी मेंटल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ के बारे में रिकवरी प्रोसेस भी ये एक कंपोनेंट है, अगर वो देखना चाहेंगे, बहुत सारे लाइव प्रोग्राम्स हमारे होते रहते हैं, तो एक बार जरूर देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल कोई बोल नहीं पाएंगे कि उनको भी ऐसे कभी मन की बीमारी थी। जो टैलेंट है, आप, मैं, यानी कि सब लोग जो यहाँ पे हैं, दे आर जस्ट लाइक अस, यानी कि हमारे अंदर में कुछ डिसेबिलिटीज हैं
जो हम उनको इस तरफ से अभी तक निग्लेक्ट किए हुए हैं, बट अदरवाइज दे आर परफेक्टली फाइन, दे आर डूइंग वेरी वेल। A very important initiative because हम लोग जब पिछले कुछ महीनों से सपोर्ट ग्रुप्स रन कर रहे हैं, सो दिस इज वन थिंग दैट वी हैव नोटिस कि पीपल हु आर फेसिंग सर्टेन चैलेंजेस, सर्टेन इश्यूज इन देयर लाइफ, उनको बहुत सी बार उनके घर वालों से सपोर्ट नहीं मिलता है, उनके आसपास के लोगों से सपोर्ट नहीं मिलता है, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम्स बिकम अ बिट बिगर. सो आई थिंक दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव. Again, so Dilip ji, are you there? Sir, yes, because of so I have to do Sure, that, sure. but I'm there. All right, perfect. So, would you be able to tell me और कोई एक्टिविटी जिसके बारे में बताना चाहते हैं? यस सर, अभी हमारे और एक्टिविटीज हैं, जो जैसे कि अभी डी एडिक्शन एक सेंटर है, उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा। डी एडिक्शन सेंटर, जब हम बात सुनते हैं लोगों से एक अलग धारणा है हमारे मन में बहुत बार, जैसे कि वहाँ पे क्या होता है, यानी कि वो एक लोगों को पनिशमेंट देने की जगह है, बहुत लोग अभी तक बोलते हैं। एक्सेप्टेंस भी एक इशू है, जो लोग नशा करते हैं वो भी बोलते हैं मैं तो उतना तो नशा नहीं करता हूँ, कभी कभार लेते हैं। और दूसरी साइड से देखते हैं, अच्छा वहां पे बहुत ज्यादा कुछ ये करने से पनिशमेंट मिलता है, लॉक करके रख देते हैं, कभी बाहर नहीं निकलने देते हैं, कुछ हो जाने से मार देते हैं, ऐसा यानी कि बहुत सारे बोलते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमने जो इवन सातारा में हमारा डी एडिक्शन सेंटर है और आसाम में तेजपुर में डी एडिक्शन सेंटर है, जहाँ पे हम ये भी एक कम्युनिटी बेस्ड डी एडिक्शन सेंटर का प्रोग्राम चला रहे हैं, जहाँ पे सब लोग फिर से बोलेंगे डी एडिक्शन सेंटर और ये कम्युनिटी बेस्ड डी एडिक्शन सेंटर क्या है। तो ये कम्युनिटी बेस्ड डी एडिक्शन सेंटर में हम पूरे फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, और यहाँ पे लॉक एंड की सिस्टम हमारे नहीं है। जहाँ पे हमारा जो डी एडिक्शन सेंटर है, यहाँ पे हम जो विलिंगनेस है उनको बोलते हैं, पहले दिखाते हैं, ये देख आपका अगर नशा का प्रॉब्लम है, अगर सॉल्व करना है डेफिनेटली आप अगर रहना चाहेंगे तो रह सकते हैं, नहीं तो फिर आपकी मर्जी, और जोर जबरदस्ती करके कोई भी कभी भी किसी को नहीं रख सकते हैं। तो हमने ये सोचा है ना कि थोड़ा डिफरेंट ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि एक्चुअली लाइक टू बी वेरी फ्रैंक, जब हम स्पेशलिस्ट की बात करते हैं फॉर आवर सेफ्टी पर्पज, हम बोलते हैं यानी कि अच्छा लॉक एंड की सिस्टम लगाने से हमारे लिए यानी कि एक अच्छा हो जाएगा, उतना ध्यान नहीं देना पड़ता है। और जब हम सब दरवाजा खिड़की जब खुला रखते हैं तो यानी कि एक रिस्क रहता है, अच्छा कब भाग कर चले जाएंगे और कुछ करेंगे क्या, ऐसा एक रिस्क रहता है। बट डेफिनेटली यानी कि रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि घर में तो वो ओपन एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहाँ पे कोई उनको बांध कर तो नहीं रखते हैं। And definitely if they wanted to come out from the problem, they will definitely stay. जो हमने भी देखा है, यानी कि 3 महीने 4 महीने तक लोग हमारे डी एडिक्शन सेंटर में रह के गए हैं। और ये जब भी हमारे यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि हमारा जो कोर्स रहता है 3 वीक्स to 4 वीक्स का कोर्स रहता है, जहाँ पे उनको पूरा समझाया जाता है नशा का बीमारी क्या होता है, वो क्यों नहीं करनी चाहिए, यानी कि क्या है उसने क्या अभी तक खोया है पर्सनल लाइफ में, करियर में, फैमिली लाइफ में या सोशल लाइफ में, तो बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है। सेकेंड स्टेज में उनको थोड़ा हम तैयार करते हैं कि घर में जाकर बैक व्हेन दे आर गोइंग बैक टू द सोसाइटी, तो उनको क्या क्या करना है, जैसे कि उनका काम जो रहेगा वो करना है, यानी कि कुछ जो उनके स्ट्रेसफुल फैक्टर्स हैं तो उससे वो कैसे बाहर आ सकते हैं, उनको किस तरह से मदद चाहिए होगा। और एक हम एक्सटेंडेड सपोर्ट उनको हमेशा उनके साथ में रखते हैं। हम बोलते हैं जब भी आपको कोई भी इश्यूज रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, they can call back to us, we will definitely help them to overcome from their difficulties, and we will support them in whatever the way we can। और उनको इवन एज एन एंगेजमेंट में हम उनको थोड़ा हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि आपको अगर काम भी शुरू करना है डेफिनेटली यू टेक हेल्प फ्रॉम अस, सपोर्ट फ्रॉम अस, जो हम आपको ये प्रोग्राम के लिए आपके जो जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल करने के लिए हम भी उनको गाइड करेंगे करके। जो हम अगेन वी आर नेटवर्किंग विथ द स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी रहते हैं, अगर किसी को कुछ काम करना है, फॉर एग्जांपल अगर बोल रहे हैं कि मुझे कम्युनिटी में जाकर फिर से एक दुकान चलाना है, फॉर एग्जांपल दुकान स्टार्ट करना है, तो जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उनसे हम लिंक करवाते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं,
तो उनसे लिंक करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही ऐसे एक्सपर्टीज हैं जो एक प्रोग्राम किया था उसमें से हमने एक्सपर्टीज डेवलप की हैं, तो उनको हम पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि व्हेन दे गो बैक टू द कम्युनिटी, क्योंकि अगर उनके प्रॉब्लम है अगर कुछ है तो एक महीने में सॉल्व तो नहीं होने वाले हैं। और प्रॉब्लम की वजह से अगर कुछ शुरू किया है डेफिनेटली वो दे अगेन एसोसिएट दैट विद द प्रॉब्लम। तो वो शुरू ना करने के लिए एज एन एग्जांपल के तौर में कि वो ना करने के लिए हम उनको पहले से ही प्रिपेयर करते हैं और उनके घर वालों को पूरा यानी कि ये प्रोसेस में इन्वॉल्व करके रखते हैं। वीकली वो विजिट करते हैं सेंटर में, वीकली हम उनको अपडेट देते हैं ताकि उनको भी पता है कि इनका जो रिकवरी प्रोसेस कौन से स्टेज में है, कैसे वो आगे बढ़ेगा, कितना टाइम सपोर्ट उनको ऐसा रहना पड़ेगा, मेडिसिन कितना लेवल तक काम करेगी। ये इस तरफ से हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी तक हमारे पूरे यानी कि डी एडिक्शन सेंटर जो महाराष्ट्र में 25 साल से हैं, वी हैव लाइक रिहेबिलिटेट मोर देन अराउंड 5000 पीपल। तेजपुर में हमने जो शुरू किया रिसेंटली स्टार्ट किया, जस्ट 1 साल हो गया है। 1 साल में हमने वी हैव सीन अराउंड 100 persons with like addiction even at the community level and at the de-addiction center। तो एक बहुत यूनिक डेवलपमेंट लाइक मॉडल डेवलपमेंट की तरफ से हम मूवमेंट करना चाहते हैं। चैलेंजेस डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा हैं बट डेफिनेटली वी शुड ट्राई दिस। जब हम कोशिश करेंगे तभी तो एक अच्छे से मुकाम पे पहुंच जाएंगे। It's good that you've spoken about challenges and difficulties because probably that was one of the next things I was talking about, which was challenges and difficulties. So, what are the key challenges that you face when you're working in the area of mental health? Acha, sir, before going to these challenges, again I have to add some few points, okay? Sure, sure, Like we sure. have other services also. Very interesting again, like we have a mind cafe, यानी कि एक मन का कैफे है इससे, जो एक्चुअली इट वाज फंडेड बाय अ थ्राइव प्रोजेक्ट। जो थ्राइव प्रोजेक्ट जो हमने किया था इससे सेम कम्युनिटी मेंटल हेल्थ था, जहाँ पे हमारा मोस्ट फोकस एम्फोसिस वाज ऑन लाइवलीहुड टू सपोर्ट देम विद द लाइवलीहुड एक्टिविटीज एंड ऑल। So through that we have started one cafe called Mind Cafe, and also we have one similar like two cafe we have one in Satara, we have also one in Tejpur, जहाँ पे only like recovering persons with mental illness and their caregivers are working, and this is fully run, fully operated by them only. Like we are just providing them the external support। और वेरी सरप्राइजिंगली यानी कि मैं बोलना चाहूंगा कि ये विद इन 6 months वी हैव रीच टू नो प्रॉफिट नो लॉस इन सिचुएशन, जो बहुत ही कम देखने के लिए मिला है। बहुत ही अच्छा। Dilip ji, are you there? I've just lost you. Okay, so we have just lost Dilip ji, I think, because of internet connection. He should be joining us again soon. Meanwhile, if I hope you have been finding this interaction interesting and useful. There's a lot that the Parivartan group does, and it's really, really nice that that there are so many NGOs who are now working in this direction to be able to help people improve their mental health situations. If you have any questions, if you need any help, please share those questions with us in the comments, and I would surely take it up. And once Dilip ji joins in, I'm sure we would be answering those questions for all of you. Meanwhile, I would like to once again request all of you that if you are facing any kind of emotional situations where you feel that you're feeling a bit overwhelmed, or if you're feeling a bit confused, or if you're feeling anxious, then please don't wait till it gets too late. There's help available. There are people who are willing to help you. So please go ahead and seek their help. And so now that we have Dilip ji with us, Dilip ji, am I audible now? Yes, sir. I don't know, something happened with the connection. Dilip ji, am I audible now? Yes. Yes? Perfect. So आप कुछ बोल रहे थे, बीच में disconnect हो गए. Would you like to continue about Mind Cafe? Yes. So it definitely there are lot of scope.
Sir, can you hear me? I can hear you. आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, but I can hear you. Can you hear me? People, I'm really sorry. There seems to be some internet difficulties again. I'll just check what can be done, but I'm sure we will have the LibG with us. There is some question that we have on the comments also from Sam Raoji. So Sam, just give me some time. I will put that question across to the LibG once we are able to sort out the connectivity thing. Yeah. Meanwhile, while he connects again, as I said, any of you have any questions, please feel free to throw those questions to us and we'll be more than happy to answer those questions. If you have questions about Parivartan, then I'm sure Dilipji would address those questions. And if you have any other questions regarding mental health that you would like to ask me, please feel free to ask those questions to me as well. And I'm here, so I'll be more than happy to address those questions for all of you. Also, I would like to thank all of you because I've received like a large number of calls and messages after the talks regarding the information that the talks are able to provide to people and how it's helping everyone. So it's only because we are receiving these responses that we keep organizing and planning new episodes going forward. If you are aware of some other NGO who's doing a lot of good work in the area of mental health, do let us know so that we can also connect them and invite them for the talks. I think Dilipji has just joined in. Let me just check once again. Okay. No, so he's still facing some difficulties. So while he joins us again, like I said, if you require any help, please seek it. There are people available. If you know of people who are providing support and providing help to others in the area of mental health, please connect us with us. Please let us know so that we can also invite them for the episodes and help them spread the word about the kind of work that they are doing. Okay. So meanwhile, Samji has asked a question that he has asked Dilip, but since Dilip is taking a couple of moments to join in, I'll probably address the question from my side. So Samji says that he's asking about very smart gay couple from Buxa district that committed suicide on August 1 due to mental anguish because of non-acceptance by families. And how can situations like this be prevented in future? So Sam, truly speaking, it's a challenge because there are two things that we're talking about. We're talking about acceptance with respect to mental health. We are also talking about acceptance from society about a particular, what should I say, a particular idea that has not been difficult for some people to digest. Now, with awareness over a period of time, hopefully more such things will not happen and we will be able to prevent a lot of such things. Having said that, this is also a request to all those people who are from the LGBTQI plus community. If for any reasons you are facing difficulties, challenges, and you're finding it difficult to manage the situations that are happening around you, maybe you're not at fault for it. Maybe there are around people around you who are not able to understand what ideally they should be able to understand. Yet, committing suicide is probably not something that you should even consider. If those thoughts are coming in your head, please seek the help of a mental health practitioner. I know, I understand you would feel that it's not our fault that we are not being accepted by society. Having said that, while change takes place in society, it's important that you also are able to take care of yourself. So a lot of LGBTQI plus communities, mental health groups are available. We have had two people
from two different NGOs coming on this channel earlier, talking about the support that they provide to the community. So please seek help and please connect with them. I think Dilip ji is facing certain difficulties with respect to connecting with us. I'm going to wait for another probably a minute to see if he's able to join us. Meanwhile, Sam, if you have any other questions that you would like to ask, please feel free to ask, and I would be more than happy to answer that. And if you have any other questions from Dilip ji or from Parivartan, please still ask those questions in the comments, and I would surely get a response from them and post it forward in the comments box later on. And while we wait for Dilip ji and the comments from any of you, so I have been asked a number of times, why are we doing these initiatives that we are doing, both the NGO talks and the support groups that we run for psychologists. And the reason we do this is because we know that there are a lot of people and a lot of organizations that would really like to be able to reach out to a large audience, be able to help them. And a lot of these NGOs, a lot of psychologists that I know are even working at a highly subsidized cost or for free. And yet what happens is they don't have the kind of reach that they ideally should have. And this has been our initiative to help them create that reach. If you can help us in this initiative, if you can help us spread the word about these NGOs to other people, please go ahead and do that. Because the more people these NGOs can reach out to, the better it is. Probably the more lives we will be able to save. And most importantly, from my point of view, we would probably be able to help more people prevent a lot of suffering that they have to go through because of mental health issues. If we are able to help people understand the importance of mental health and help them understand why they need to consider mental health practitioners sooner, hopefully a lot of problems that may come up in future could be prevented. I hope all of you agree with me on this. I think because Dilip ji is still facing a problem, I am going to go offline for now. If any of you still have any questions, please get in touch with us. I would see if we can bring in Dilip ji again for another episode, probably a couple of weeks later, if possible, because of this connectivity issues that we have faced. I would like to thank all of you for being with us, for joining us in this series, and see you next Monday at 7:30. If you, as I said, if you have any NGOs, please get in touch with us so that we would like to invite you after checking what are the kind of things that you're doing to be sure that we are able to help the right kind of NGOs spread the word about the kind of activities they're doing. So see you everyone. Thank you very much for joining us today. And I hope to see you again next week. Wait, I think, no, so Dilip ji still not been able to join in. So I think for now, I would go offline. Thank you once again. Looking forward to connecting with you next week. Thank you.